Human activity is inversely proportional to the plantation. جب بھی ہیومن ایکٹیویٹی انکریز ہوگی درخت کم ہو جائیں گے. 50 سال میں نے اسلام آباد کو بگڑتے ہوئے دیکھا ان ریلیشن ٹو دا انوائرمنٹ. اور اسلام آباد کی جو بہت ساری سڑکیں ہیں جو گرین بیلٹس ہوا کرتی تھیں، تھک گرین بیلٹس ود لاٹ آف ٹریز، وہ روڈز بن گئیں. جو مارگلا ہلز تھے دے ہیڈ تھک پلانٹیشن، بہت گہرے گھنے جنگلات تھے، وہ کم ہو گئے بیکاز ہم نے وہاں پہ ہیومن ایکٹیویٹی بڑھا دی. تو جہاں پہ بھی آبادی بڑھے گی درخت کم ہوں گے. ہمارا بڑا شوق ہے کہ گھر بنانے میں، تو جب بھی ہم نئے کالونیز بنائیں گے وی ایکسپینڈ دا ہیومن ایکٹیویٹی ٹورڈز دا پلانٹیشن اینڈ دا جنگل، تو اٹ ول ریزلٹ انٹو ڈیفارسٹیشن. اور میسو ڈیفارسٹیشن ہے اسلام آباد، پنڈی اینڈ دا سراؤنڈنگز. ابھی تو ہم بہت دور دور تک جا رہے ہیں اپنے کالونیز بنانے کے شوق میں. یو پارک 300 ایکڑ کا یو پارک ہے، 2500 کنال، اینڈ اٹ ہیز تھک فارسٹیشن آل اوور. پروبلی یہ ایک جگہ رہ گئی ہے پنڈی اسلام آباد میں جہاں پہ وی ہیو تھک 80 to 85 ایکڑ کے فارسٹ ہیں، تھک فارسٹ ابھی بھی، اور ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں. یو پارک کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ درخت کچھ عرصے میں کچھ کم ہوئے بیکاز آف ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز. اس کو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اپنے سر پہ کہ 1.5 سے 2 لاکھ درخت ہم 3 سال میں لگائیں گے، اور الحمدللہ ہم ٹارگیٹ کے پاس 60-70% ہم نے آلریڈی اچیو کر لی. لیکن ان دا مین ٹائم ہمارے انٹروڈکشن میں واقعی ٹیکنیک کے ساتھ ہوا. ہمیں سمجھ آئی کہ جو 1000 یا 1500 درخت ہم 4 یا 5 کنال میں لگاتے ہیں یا 6 کنال میں، وہ ایک کنال میں کنڈینس کر کے لگاتے ہیں اور وہ گرو بہت تیز کرتے ہیں. اس وقت 5 میاواکی فارسٹ یو پارک میں لگ چکے ہیں. سب سے پہلا ہم نے آج سے ایگزیکٹ 1 سال 1 مہینہ پہلے لگایا تھا. وہ درخت 15 سے 16 فٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور تھک گرین، وہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ واقعی یہ ٹیکنیک از گروئنگ. اس کے بعد مزید ہم نے 4 فارسٹ یو پارک کے اندر اور لگائے. میاواکی ایک جاپنیز بوٹینسٹ تھا. اس نے آج سے کم و بیش 50 سال پہلے جب جاپان کے اندر اربنائزیشن دیکھی اور درخت کم ہوتے ہوئے دیکھے. جاپان کا رقبہ پاکستان سے آدھا ہے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت درختوں کی بہت شدید ضرورت ہے اور درخت کم ہو رہے ہیں، تو کیا کیا جائے. دین ہی ڈیولپڈ اے ٹیکنیک جس میں سوئل کو ماڈیفائی کرتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں، انرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں کنڈینس کر کے درخت لگاتے ہیں. میرا نام مسعود احمد ہے. میں ایوب نیشنل پارک میں پچھلے 11 سال سے سینئر ہارٹیکلچرسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. میاواکی فارسٹ بیسیکلی ایک جاپنیز ٹیکنیک ہے جس میں ہم ایک فارسٹ کو گرو کرتے ہیں اور اس میں نیٹو سپیشیز جو لوکل سپیشیز ہوتی ہیں ان کو گرو کیا جاتا ہے. یہ اربن فارسٹیشن کی ایک ٹائپ ہے جس میں کلوزر ڈسٹینس پہ ٹریز اور شربس کو لگایا جاتا ہے اور ایک زمین کا ایریا اس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر سے ڈبریز وغیرہ، سٹونز وغیرہ اور وائلڈ گراسز ریموو کر دی جاتی ہیں. دین 3 فٹ ڈیپتھ میں اس پورے ایریے کی کھدائی کر دی جاتی ہے. پھر اس میں آپ اگین 1.5 فٹ ایریے کو صاف مٹی سے فل اپ کیا جاتا ہے. جو ریمیننگ 1.5 فٹ سائل ہوتی ہے، وہ جو آپ کے پاس سائل کا ڈیمپ ہوتا ہے، اس میں آپ مینیور، رائس ہسک اور کوکو پیٹ ڈال کے ایک میڈیم تیار کیا جاتا ہے جو نیوٹرینٹ انرچ مٹیریل ہوتا ہے. اس میں واپس بیک فل کیا جاتا ہے، اس کی لیولنگ کی جاتی ہے اور اس میں کلوز پلانٹیشن کی جاتی ہے ٹریز کی اور شربس کی. پلانٹس سے پلانٹس اور رو سے رو کا جو ڈسٹینس ہے وہ 2 فٹ کا ہوتا ہے. پیٹرن اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ ایک ٹریز لگا لے، پھر شربز لگا دیں، پھر ٹریز لگا لیں، لیکن ٹریز بھی ڈفرینٹ ہائٹس کے ہوتے ہیں.
जिग जैग पैटर्न पे इन प्लांट्स को प्लेस करके लगाया जाता है और इस पैटर्न पे लगाया जाता है कि ये प्लांट्स जब ग्रो करते हैं ना तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है। दिस इज एक्सपेंसिव टू स्टार्ट विद, लगता है ऐसे बहुत महंगा है। मैं इसको यार्ड से कैसे बताऊंगा कि एक कनाल अगर ये आप तैयार करें तो कमो बेश 4 से 5 लाख का एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब उसके अंदर 1200 दरख्त आप लगा देते हैं जिसके अंदर जो टॉल ग्रोइंग ट्रीज हैं वो 50% होंगे, उसके बाद जो मीडियम हाइट ट्रीज होंगे वो 30% होंगे और ग्राउंड कवर्स 20% होंगे, तो ये सब लगा देंगे तो जिस स्पीड से ये ग्रो करेगा और जिस तरह से ये एरिया को एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाएगा एस्थेटिकली एंड रिच करेगा एनवायरनमेंट को, एयर को खूबसूरती के साथ साथ, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। और ये अडॉप्ट करके हम ये देखते हैं कि हम ना सिर्फ एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, हम एयर को प्योर कर सकते हैं और जमीन को बहुत साफ कर सकते हैं। हम डिफरेंट श्रब्स लगाते हैं, जैसे जट्रूफा हो गया, हाइबिस्कस हो गया, इस तरह के ये श्रब्स आ गए। देन लेजिस्टोमिया आ गया, ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कचनार लगा लेते हैं, अर्जन लगा लेते हैं, पीपल लगाते हैं, नीम लगाते हैं। इस तरह के डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं जहाँ पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये टेक्निक नेटिव ट्रीज पे बेस करती है। दुनिया में 47 मुल्क अभी तक इसको अडॉप्ट कर चुके हैं और 13 से 14 मुल्क मजीद इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और ये मशरूम हो रही है दुनिया में ये टेक्निक, बिकॉज दिस इज बेस्ड प्योरली ऑन द नेटिव ट्रीज। हमने जिस तरह से पाकिस्तान में ये मियावाकी फॉरेस्ट लगाने शुरू किए, लाहौर में लगे, पिंडी में लगे, इस्लामाबाद में लगे, ये सारे के सारे बेस्ड ऑन द लोकल ट्रीज, जो उस इलाके के अपने दरख्त हैं उसी दरख्तों को लगाया जाता है और वो प्रॉस्पर करते हैं। जिस जगह का दरख्त है वहां पे वो ग्रो करेगा, फलेगा, फूलेगा और उस जगह के लिए वो डिजाइन है। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इसको डिजाइन किया। हमने देखा कि हमने पेपर मलबरी, जंगली शहतूत कहते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट करके लगाए और पूरे इस्लामाबाद में लगा दिए। उसका नुकसान क्या हुआ? एक तो वो एनवायरनमेंट से मैच नहीं किए, दूसरा हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इस्लामाबाद में स्टार्ट हो गई, पिंडी में स्टार्ट हो गई। अल्टीमेटली उसको हम काट रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। सो नेटिव ट्रीज नेटिव ही होता है और वहाँ पे जहाँ पे वो लगेगा वहाँ पे न सिर्फ उसको एनवायरनमेंट अडॉप्ट करता है बल्कि जो परिंदे हैं वो भी इसको अडॉप्ट करते हैं। आप ये जरूर देखेंगे कि जो परिंदों के गौल आते हैं वो आके उन ट्रीज पे डिसेंड करते हैं जो कि नेटिव होते हैं। इंपोर्टेड ट्रीज पे कभी आके वो नहीं बैठते। क्योंकि क्लोज डिस्टेंस पे पौधे लगते हैं तो वो लाइट के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं। तो पौधा ऊपर से रोशनी लेता है और वे ऊपर की तरफ ये इसकी जो है ना ग्रोथ होती है। मियावाकी फॉरेस्ट इज 10 times फास्टर, 30 times थिकर और 3 साल में इट बिकम्स एब्सोल्युटली मेंटेनेंस फ्री। इवन फर्स्ट ईयर के बाद ही मेंटेनेंस फ्री हो जाता है, क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है 6 से 8 महीने में ये दरख्त जो 3 फुट पे लगते हैं ये 12 फुट 13 फुट पे पहुंच जाते हैं। इट इज अमेजिंग स्पीड ऑफ ग्रोथ और ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि ये वाकई एक वो टेक्निक है जो अडॉप्ट करके यूज करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये मियावाकी को देखकर हमें अप्रोच किया कि हमें गाइड करें, उनको हमने एजुकेट किया। बहुत से गैरिजन्स बाहर से लोग आए, मुख्तलिफ शहरों से आए, उनको हमने इस पर ब्रीफ किया और 4 से 5 मियावाकी फॉरेस्ट हमने पिंडी में लगाए और इसके अलावा दूसरे शहरों में मियावाकी हमसे सीखकर जो लोग हैं उन्होंने लगाने स्टार्ट किए हुए। आज से एक आधा साल पहले
हमारे पास जो कचरा, जो वेस्ट, 3 किस्म का वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जो इन बल्क होता है, किचन वेस्ट एंड ग्रीन वेस्ट, ये इकट्ठा होता था और इसको हम डिस्पोज ऑफ करने के जगह और तरीके देखते रहते थे कहाँ पे फेंके, क्योंकि वेस्ट एरियाज भी आपको पता है वो खत्म हो रहे हैं। फिर इसके ऊपर जो हमें डायरेक्शन मिली कि इसको हम मैनेज करेंगे खुद से और हमारा 100% वेस्ट विल बी केटर्ड फॉर कवर्ड इनटू प्रेमिसेस ऑफ ए यू पार्क। तो जितना हमारा प्लास्टिक वेस्ट है इसको हम इकट्ठा करते हैं, इसको हम बेल प्रेस मशीन का एक सेटअप है हमारा, उसके अंदर हम कंप्रेस करते हैं और उसके बाद हम इसको लाहौर भिजवा देते हैं। वहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं दे मेल्ट द प्लास्टिक, उसके बाद हम वहाँ से बेंचेस बनते हैं, हमारे स्विंग बनते हैं, झूले बनते हैं, राइड्स, और वो हमारे पास वापस आ जाते हैं। दिस हाउ द प्लास्टिक इज केटर्ड फॉर, जो बहुत बल्क है। हमारे पार्क के अंदर जो कूड़ा है, क्रिकेट है, हर चीज़ हम जो है ना क्लोज करते हैं और इसकी सफाई हम सुबह फर्स्ट टाइम पे, जब फॉलन का टाइम है, सुबह 6 बजे 7 बजे हम शुरू कर देते हैं। सेंट्री वर्कर इकट्ठा करते हैं, फिर लोग हमारे पीछे होते हैं जो ट्रालियाँ भरते हैं, रक्शे में डस्टबिन खाली करते हैं, वो सारा क्लोज करके हम मशीन पे ले जाते हैं। इसमें काफ़ी किस्म की चीज़ें होती हैं सर। इसमें जो एक कड़क बोतल कहते हैं, प्लास्टिक बोतल, वो होती है, शापर होता है, उसके बाद ये टिन डब्बा लोहा भी इसमें होता है, गत्ता होता है, ये जो दुकानों वालों का, वैसे दूध के डब्बे, जूस के डब्बे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं। इनको वहाँ पे हम अलग अलग करते हैं, फिर इसको हम मशीन के अंदर डाल के इसके बंडल बनाते हैं। बंडल बनाने के बाद फिर इस सामान को हम लाहौर में बेचते हैं। और ये एक मेजर अजीज भट्टी के बेटे की फैक्ट्री है लाहौर में, ग्रीन अर्थ के नाम पे। ये उनसे हमने मशवरा करके कि ये हमारा जो कूड़ा है, ये क्रिकेट है, ये प्लास्टिक है, ये सारा ज़ाया जाता था। हम ट्रालियाँ भर भर के ये बाहर कंटोनमेंट बोर्ड वहाँ पे इधर उधर फेंक के आते थे। उनसे हमने जाकर विजिट किया, देखा कि ये जो चीज़ें हम फेंक रहे हैं इसका वो क्या बना रहे हैं, प्लास्टिक के बेंच, डस्टबिन, झूले, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं। वहाँ से इनके बदले हम जो हैं वो झूले, डस्टबिन और ये बेंच वगैरह जो है, ये चीज़ें फिर वहाँ से हम लेते हैं उनसे। बॉटल्स को हमने अपने इन्वायरमेंट पर्पस के लिए कैसे यूज किया है कि बॉटल्स को हमने हर पौधे के साथ लगा के उसमें पानी भर दिया जाता है, उसके बॉटम पे एक हल्का सा सुराख कर दिया जाता है और ऊपर से उसका ढकना टाइट कर दिया जाता है। पानी कतरा कतरा पौधे की जड़ को मिलता रहता है। इससे न सिर्फ हमारी बोतलों का यूटिलाइजेशन हो रहा है, बल्कि हमारा पानी भी कम से कम इस्तेमाल हो रहा है और हमारे पौधों का जो सर्वाइवल है वो भी बढ़ रहा है। इस पैटर्न के ऊपर हमने वेस्ट को भी कम किया है, पानी को भी बचाया है और पौधों का सर्वाइवल भी लिया है। जो हमारा ग्रीन वेस्ट है और किचन वेस्ट है, इसके हमने कंपोस्टिंग पिट्स बनाए हुए हैं, हम उसमें कंपोस्टिंग करते हैं और 2-3 महीने बाद उसका बड़ा प्योर और नेचुरल खाद मैन्योर बन जाता है उसका। दिस इज हाउ वी टेक केयर ऑफ ऑलमोस्ट 95% ऑफ द वेस्ट दैट वी हैव इन अ पार्क। प्लांटेशन वगैरह कंप्लीट हो जाती है, देन इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है मल्चिंग। इसमें जब आप प्लांटेशन कंप्लीट कर देते हैं, देन आप 3 से 4 इंच का एक मल्च जो है ना वो लीफ और बार्क प्लांट्स की और ड्राई लीव्स की शक्ल में आप इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसी से मॉइस्चर रिटेन होता है और चूंकि इतने ज्यादा पौधों को पानी भी पूरा करना और ये चीजें करना तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और खास करके गर्मी के मौसम में। तो इसमें जो मल्च पड़ा होता है उसमें जब आप इरिगेशन करते हैं तो उससे जो सॉइल का मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहता है और उससे पौधों को पानी मिलता रहता है और पौधे ग्रो करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल कॉम्प्लिकेशंस इन एनवायरनमेंट, ये सारी अराइज हो रही हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो क्यों मेल्ट हो रहे हैं? दरख्त कम हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं।
فلڈ آ رہے ہیں, تباہی ہو رہی ہے, ڈسٹرکشن ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی پاکستان میں, اور پاکستان اس 7 ورسٹ ہٹ کنٹریز میں ہے جہاں پہ کلائمیٹک افیکٹ بہت زیادہ ہیں. سو جب آپ درخت لگائیں گے تو نہ صرف درخت زمین کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, اٹ ایڈس ٹو دا اسٹیبلٹی آف دا انوائرمنٹ. سو یہ جو اس ٹیکنیک کی میں بات کروں گا کہ جب آپ کنڈینس کر کے تھک گروتھ کریں گے پلانٹس کی جو کہ فاسٹ اینڈ ٹال گروئنگ ہیں, تو آٹومیٹیکلی اٹ ول ٹیک کیئر آف دا انوائرمنٹ. یہ کلائمیٹک افیکٹس کو وہ ضرور ریڈیوس کریں گے. اگر ہم اپنی ہیبٹ چینج نہیں کرتے, اگر ہم پلانٹیشن پہ دھیان نہیں دیتے, اگر ہمارا ڈیفارسٹریشن کے ٹرینڈ کنٹینیو کرتے ہیں جیسے یہ کر رہے ہیں, تو only one word, massive destruction of environment. We have already done it. ہم نے بہت حد تک environment کو spoil کر دیا, اور مزید ہم environment کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے. یہ سارے unplanned, unscheduled جو environment related factors ہیں, this will start enhancing in a very worse way, اور degradation of environment will be very massive.